Today we have gathered here for mock parliament. It was first started in the year 1966 and 67. As we know that the parliament is a symbol of democracy. We can say that it is a temple of democracy. Why we conduct the parliament? It is some purpose like it develops leadership quality among the students to understand the process of parliament and to develop sensitivity towards social political issues. Now, also the mock parliament enables students how to raise questions and control the government. So now we start the mock parliament today. And through the newspaper, when we read the newspaper, we know that only the parliament is the clash between the ruling party and the opposition party, right? If we have more information like the presentation. Okay, but it has a many procedures. So let's see today's activity through the class 8 section DEFD. So welcome all that concerned teachers and the students. So let's start our mock parliament and let's wait for the principal sir. करते रहना भाई बीच में करते रहना भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Good morning all the members of Parliament. Now we proceed the monsoon session with revised information. We have lost the famous vocalist, songwriter Lata Mangeshkar. Second, revised information, famous actress and politician Sonali Sosed has passed away with suffering of heart attack. Now all the members stand for 1 minute silence. Now everyone please sit. Now I tell to respected authorities to start the question hour with question number 101. आवाज क्यों हो रही है Now I would like to call newly elected members for Lok Sabha to take vote.
The first one is Varsha Rani from which language would you like to take? Hindi. मैं वर्षा रानी पटना से लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हूँ। ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत के संप्रभुता और अवध अकुशल रखती हूँ तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निवारण करूंगी। धन्यवाद। Now, to call Pallavi Kumari from Raipur. To take in which land would you like to take oath or affirmation? In which language would you like to take oath? मैं पल्लवी कुमारी रायपुर से लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और श्रद्धा रखूंगी। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। Now, the third one is Atul Sharma from Hyderabad. Would you like to take oath or affirmation? In which language would you like to take oath? मैं अतुल शर्मा हैदराबाद से लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की स्वतंत्रता और अखंडता अवरुद्ध रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ Would you like to take oath or affirmation? Which language would you like to take oath?
जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हैं, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान की प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगी। मैं भारत के संप्रभुता व अखंड अखंडता तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। Now we proceed the question hour with question number 101. आपकी सरकार उनके बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़े। मैं ऐसा चाहता हूँ कि उनके सरकार सुखी रहे और उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े। लेकिन हमने ये योजना अपनी योजना इसलिए बनाई है क्योंकि अगर कोई गलत आदमी या दूसरे देश से कोई खरीदा हुआ आदमी हमारे फौज में जुड़ जाता है तो वो हमारे देश के लिए हानिकारक है और वो दूसरे देश में हमारे गुप्त हमले के बारे में सूचना पहुंचाते रहेगा। इसीलिए हमने ये योजना बनाई है कि एक आदमी 4 सालों में फौजी से हट जाए और 4 सालों में कोई आदमी इतना धोखा नहीं हो जाता कि वो दूसरे नौकरी में अपना निकास न डाल सके। महोदय, मैं बताना चाहता हूँ मुझे खुद भरोसा नहीं है अपने आर्मी पे। मुझे लगता है कि वो बिक जाएंगे। हम इंडियन आर्मी हम लोग के बीच में बिकते नहीं है। हाँ, मुझे भरोसा है लेकिन कुछ ऐसे इंसान होते हैं पूरे दुनिया में जो बस पैसों पे फंसते हैं। उन्हें बस पैसे चाहिए और कुछ नहीं। इसीलिए हमने ये योजना लाई है। ये दुनिया में होंगे, भारत में नहीं। भारत में है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। मुझे तो नहीं पता, फिर किसके बारे में पता है बताइए। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे पैसों के टुकड़ों पर फंसते हैं और बस पैसे उन्हें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो जो व्यक्ति 17 साल तक रोज मेहनत करे बस आर्मी के लिए, बस 4 साल की नौकरी और पेंशन के लिए, आप बताइए, जवाब दीजिए। तो वो दूसरी नौकरी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जो व्यक्ति मतलब भाग कर मेहनत निकाले उन्हें कैसे भी नौकरी करेंगे? तो आर्मी के लिए टीचर लगाते हैं। आर्मी फौज में जाने के लिए बहुत सारे क्वालिफिकेशन चाहिए और पढ़ाई भी बहुत ज्यादा करनी पड़ती है और उस समय उनकी उम्र इतनी नहीं होगी कि वो दूसरे चीजों में नौकरी ना ले सके। इसीलिए उनकी अब तनख्वाह भी तो बहुत कम होगी। तनख्वाह इतनी कम है जितने की आपकी सरकार के MP टेबल और कुर्सी तोड़ लेते हैं, इतनी उनकी तनख्वाह है। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे नौकरी ऐसे भी है जिनमें तनख्वाह है, लेकिन आर्मी में तो नहीं है। आर्मी में मैंने अभी बताया आपको कि अपनी भी योजना इसीलिए हमने लाई है कि कोई भी गलत कैसे दूसरे देश के द्वारा खरीदा हुआ आदमी ना। ये तो मैं समझ गया, मैं उनकी तनख्वाह भी बोल रहा हूँ। तनख्वाह इतनी कम क्यों है? आपकी तनख्वाह तुमसे ज्यादा है। माननीय अध्यक्ष महोदय को संबोधित मैं माननीय अध्यक्ष महोदय की सहमति से इस बंदी से यह सवाल पूछना चाहती हूँ से इतने दाम क्यों है? क्योंकि ऐसे दामों और ऐसे हैं तो गरीब आदमी भूखी खरीद नहीं पाते। तो क्या मैं भूखे सो जाए? माननीय अध्यक्ष महोदय, अपोजिशन पार्टी के द्वारा उठाए गए सवाल इस तरह समझना चाहता हूँ। भारत सरकार इस बात से इनकार नहीं कर रहा है कि आवश्यक वस्तु के दाम बढ़ रहे हैं। फिलहाल महंगाई साथ ही नहीं बढ़ रही। भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसे कम करने की कोशिश कर रही है और ये पहले बार GST से पहले 22 साल में VAT लगा था। मेरा यह प्रश्न है कि आप सत्ता में आने से पहले आपने लोगों से वादा किया था कि आप सबके खाते में 15 लाख रुपए डालेंगे। आज तक वो पैसे क्यों नहीं आए? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्षी दल के द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब इस तरह
हमने गरीबों के खाते में 1500 रुपए भेजा। इसी तरह हमने 1500 करोड़ खर्च किए हैं, तभी तो रोज इस्तेमाल होने वाले घी, आटा आदि आपने तो सत्ता में आने से पहले यह वादा किया था कि आप भारत को गंदगी मुक्त देश बनाएंगे, लेकिन अभी जाकर देखिए तो हर तरफ कचरा ही कचरा है। कचरेदारी वाले कचरे को लेकर तो जाते हैं, एक तरह जाकर छोड़ देते हैं, आधा अधूरा काम करते हैं। तो क्या यही है आपकी स्वच्छ भारत की योजना? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्षी दल के सवाल में यह उत्तर देना चाहूंगी कि आप देख नहीं सकते कि हमने अपने काम जारी रखा है। जब आपकी सरकार थी तो आपने तो एक ही सवाल उठाए थे, और अब हमारी सरकार पे इतनी शिकायतें और सवाल। अगर आप देख नहीं सकते तो हैदराबाद, दिल्ली, झारखंड जैसे शहरों में कितनी सड़कों की साफ सफाई हो रही है, अभी भी काम जारी है। हमने डंपिंग ग्राउंड भी बनाना शुरू कर दिया है जिससे वेस्ट रिसाइकल हो सके। ये डंपिंग ग्राउंड कहाँ बना है? हमें तो कोई डंपिंग ग्राउंड दिख नहीं रहा है। शहरों के बाहर अभी बन रहा है जिसके कारण रिसाइकलिंग हो सके। आप जल्दी काम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं? हम बहुत जल्दी कर रहे हैं और अभी काम जारी ही है। तकनीकी विकास के विषय में हमारा नेता आसमान की ऊंचाइयां है, लेकिन आज हमारे देश में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ के लोगों ने आज तक कंप्यूटर नहीं देखा। तो आप बताइए, आपकी ये सरकार ये योजनाएं बनाती है जैसे डिजिटल इंडिया, स्किल ऑफ इंडिया, आज तक आपकी सरकार ये योजनाएं सरकार क्यों नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उनके उठाए गए इस सवाल का जवाब कुछ इस तरीके से देना चाहूँगा कि हमारे देश को डिजिटल बनाने के लिए सरकार ने डिजिटल इंडिया, स्किल ऑफ इंडिया और कई तरह की अभियान की योजना बनाई है। इसका मुख्य लक्ष्य यह है कि भारतीय नागरिकों को सरकार द्वारा दी गई उपलब्ध करानी है। इंटरनेट की मदद से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आपस में जोड़ना है। विश्व के जानकार देशों के साथ मिलकर भारत को एक संपूर्ण डिजिटल भारत में बदलना है। हमारा यही एक मकसद है। Now the fuse round starts. You know there are two types of bills. Yes or no? So what is money bill? Who knows the answer? What is money bill? Anyone? Please reply my answer if you know that. What is money bill? What is money bill? Yes, the imposition, abolition, remission and the regulation of any tax, means it is related to the expenditure. This is known as the money bill, and the special things is related with the money bill. It is only introduced in the Lok Sabha. You know that? Yes or no? Okay, my next question. When a member of parliament can be disqualified? You all are sitting MLAs, MPs here. When you can be disqualified? Anyone please reply my answer. Section D, E, F, G. Section D, E, F, G. Anyone can reply my answer? Nupur Sharma. I asked the question. I'm repeating the disqualified. How can they be disqualified? When at which time they are disqualified as MPs? You know the answer? Anybody? Anybody, all of you? No answer. Yes, the speaker is ready to reply. No? If the constitution will be broken out by any member of the Lok Sabha, then it will be removed from the Sabha. Anyone? None of the member are broke the decorum of the parliament and go against the
constitution, then it may be, it can be. There is a qualification mentioned in your book. Must be citizen of India. Then he can be disqualified. If the member is absent without the permission of the House, then he can be disqualified, right? And if the member holds a profit vote, then he and she can be disqualified. My next question: which parliamentary committee in India acts as a watchdog on departmental expenditure and irregularities? Which committee is responsible for this account? Anyone? If you know the answer. The finance minister. Department I ask. Public Account Committee. Yes. How can the speaker remove from his or office? Yes, the speaker. How can he remove from his office? Anyone? By the process of impeachment. No, this is only for the president, vice president and judges of the court. Wrong answer. To be disqualified by the voting of all the members of houses. Yes, this is the right answer. Clap. Yes. कितना गैप होना चाहिए टू सेशन ऑफ द पार्लियामेंट? At least 6 months. Yes. Give a big hand. Now. 106. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक मंत्री से यह प्रश्न पूछना चाहूँगी कि एक घटनाओं में भारी बिक्री हुई है एवं जान माल का नुकसान हुआ है, इसको रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? मंत्री जी का मुँह पोछने की जरूरत है न आईना देखने? अगर खुद का सुंदर चेहरा देखना है तो गरीबों के आंसू पोछने की जरूरत है। महोदय, इसके द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर मैं सदन में कुछ अंकारे प्रस्तुत करना चाहती हूँ। वर्ष 2014 दुर्घटनाएं हुई 2010 के 20 जून 2017 यानी प्रति वर्ष और सन 2020 दुर्घटनाएं 363 आते वह अंकारा और भी बढ़ गया था। चुनाव के बाद जब हमारी सरकार तक आई तब हमने देखा कि रेलवे की सुरक्षा चांदी की तो धज्जियां उड़ पड़ी है। सभापति महोदय, हमारा सबसे पहला लक्ष्य यही था कि रेलवे की सुरक्षा प्रणाली को सुधारा जाए, क्योंकि रेलवे में सफर कर रहे व्यक्ति की भी तो कोई राह देख रहा होगा। हमने उसी वक्त स्पीडी ट्रैक रेलवे वॉल हेतु अनमेंटेड क्रॉसिंग को हटाने हेतु रेल बजट में 33 लाख करोड़ कर दी थी राशि बढ़कर 5 लाख। ऐसा हुआ आप सबको नहीं पता था। आप सब गलत बोल रहे हो। हमारे तक किससे कोई गलती मेंटेन करने की मैं आप सभी को सुनिश्चित करना चाहूंगी कि यात्रियों की सुरक्षा पर सरकार खास ध्यान दे रही है और उसके साथ रेलवे की सार्वजनिक पर जोर दे रही है। बस प्रार्थना आप सभी से यही है कि आप भारतीय रेल पर भरोसा रखें और उनके विकास में अपनी योगदान का योगदान दें।
उज्जवल उज्जवल सत्ता में आए थे तब आपने कहा था कि सरकारी अस्पतालों में परिवर्तन करेंगे, परंतु अभी भी सरकारी अस्पतालों में मरीज यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं। बिस्तरों की कमी है, डॉक्टर द्वारा पेशेंट काम नहीं किया जा रहा, साफ सफाई नहीं रहती है। क्या आप इस सब में आश्वस्त करें? ये केवल मैं नहीं, पूरी जनता जानना चाहती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूँ, हमारी सरकार जब से आई है हॉस्पिटलों की सुधार में लगी हुई है। हमने दवाइयाँ उपलब्ध कराई हैं, डॉक्टरों को भी अच्छे काम करवाए हैं, हमने अच्छी काम किया। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आपको जानकारी लेनी चाहिए। और हमें आए हुए अभी 1 साल ही हुआ है और हमें सभी चीजों को देखना है। हम हालत सुधारने में थोड़ा समय तो लगेगा। कितना समय लगेगा? हमारे पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं है जो हम चुटकी बजाएं और समय काम हो जाए। समय तो लगेगा, हम ये काम करके दिखाएंगे। आपको विश्वास रखना चाहिए और जनता को भी विश्वास रखना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं रूलिंग पार्टी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जब से आप लोगों की सरकार आई है तब से प्रदूषण कम होने के बजाय और बढ़ता ही जा रहा है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? और रही बात पेड़ों की कटाई की, तो वो भी कम नहीं हो रही है और इससे ग्लोबल वार्मिंग भी बहुत बढ़ रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सवाल का जवाब इस प्रकार दूंगा। आपने जैसा कहा, मैं उस पर कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने प्रदूषण के रोकने के लिए कई योजनाओं का निर्माण किया, जैसे सीएनजी के प्रयोग से यातायात प्रदूषण को रोकने का काम किया और हमने उज्ज्वला योजना से घरेलू प्रदूषण में कमी लाई। अभी हमने NH 33 पर 2500 पेड़ की कटाई पर रोक लगाई और हमने बहुत सी योजनाएं भी चलाई, जैसे मुख्यमंत्री कृषक वृक्ष वन योजना, और ऐसे ही प्रकार की योजना हम लोगों ने लाई जिससे पेड़ों की कटाई में कमी आएगी और प्रदूषण कम होगा और हमारा भारत स्वच्छ होगा। Wait. Now we are having both again going to audiences for the quiz. Okay? We have Ranjan was our first speaker. Do we know that? Yes or no? I want to ask who was the first deputy speaker. First deputy speaker of our Lok Sabha. Name. Name the first deputy speaker of Lok Sabha. First deputy speaker, any hand? He was M.A. Iyengar. Yes? We have heard the name, yet you are not remembering it here. Okay. Now tell me, this is a very common question. Which state has the highest seat in Lok Sabha? Wrong. Give it to audience. Give it to audience. Audience में घूमो बेटा. Audience में जाओ. उनको दो। उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश. अगर और कोई बोलना चाहते हैं, किसी और को लगता है? तमिलनाडु. और कोई anybody who wants to participate? उत्तर प्रदेश में से आ गया. कोई और है जो भाग लेना चाहते हैं? सबसे पास आएगा उत्तर प्रदेश. देखिएगा कितने का मेजॉरिटी है। उत्तर प्रदेश. Okay, the answer goes to Uttar Pradesh. Okay, clap for them those who have answered as Uttar Pradesh.
dispersed due to the conflict. Some sources estimate that 20 million people die each year of hunger. Related cause FAO estimate that at least 435 million people are seriously hungry in the world. माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है कि मई 12/2005 में जब कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट को आतंकवादियों ने गोली मारी थी तब आपकी सुरक्षा कहाँ गई थी? जब कश्मीरी पंडितों ने सुरक्षा की मांग की थी तब आपने बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन अब बहुत सारे वादे कहाँ हैं? धन्यवाद माननीय साहब मुझे बोलने का मौका। मैं अपने विरोधी पक्ष से पूछना चाहूंगी कि आपकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? आपको किसने ये सब बता दिया? क्यों आप बेतुकी बातें कर रहे हैं? आपको पता होना चाहिए कि गोली लगने के कुछ मिनट बाद ही पुलिस अधिकारी वहाँ पहुँच गए थे। पूरी सुरक्षा भी प्रदान की गई थी। जहाँ तक बात आती है कश्मीर पंडितों की सुरक्षा की, हाँ, तो उनकी सुरक्षा के लिए जवानों को तैनात किया जा रहा है। राहुल भट्ट को मारने वाले दोनों आतंकवादियों को हमारे पुलिस अधिकारियों ने जल्द गिरफ्तार भी कर लिया था। जहाँ तक बात आती जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ जवानों को जम्मू कश्मीर की सीमा पर तैनात करने। जैसे जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में कमी आई है। 2018 में 417 घटनाएं हुई थी, 2021 में 229 पर आ गई थी। आपसे अनुरोध है कि कृपया प्रश्न पूछने से पहले जागे हुए व्यक्तियों की सलाह दें, ना कि सोए हुए। At a very fast rate, and you also know that our Indian Army is very huge. So why we don't end up the nationalism within a single month or single month with our huge ammunition? Thank you. I would like to answer the opposition party's question that this is true that nationalism is growing at very fast rate, but this is also the fact that nationalism we have controlled many forests from that. And please tell me the last attack of nationalism on the Indian Army. We can't use the heavy arms and ammunition on them because it may affect the forest life. It will be harm the forest life and many animals would be killed. They know the camouflage technique which is very difficult for us to tackle them. This is also that our army also knows the camouflage technique, but it is difficult for search and kill them. एक मिनट का खाली रिकॉर्डिंग की होती है, बंद करके रखा हुआ है। अगर लोग अपना कर्ज चुका रहे हैं तो आप उन पैसों का क्या कर रहे हैं? कितना घंटा का रिकॉर्डिंग किया? बहुत से काम स्कूलों की स्थिति खराब है, रोड की स्थिति खराब है, हम उन्हें बनवाने में अपना योगदान दे रहे हैं। अगर आप इतना कुछ कर रहे हैं तो कितना क्यों नहीं है? हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम अपनी Good morning, students and teachers. I feel very good you are participating very nicely, but there are some little problems because you have not practiced. This is the problem. There was a very nice participation over there, and I feel it's a good दोनों सालों में अगर एक प्रश्न करें और दूसरा उत्तर करें तो हमारी जो कमियां होती है हमें कार्य करने वाले 10वीं लेवल बारहवीं पास करने के बाद प्रोत्साहन राशि प्रदान कराई जा रही है। Honorable Speaker sir, as we know, corruption is one of the problems in India. What does the government have to say about it, and how are they planning to decrease it? Honorable Speaker sir, I, Shraddha Jayant, would like to say that most of the times it has been seen that on the top of the list of
No, I'm not saying that. I'm just saying that according to the survey, many of the corrupt countries are poor. Not all poor countries are poor. Empirical analysis has shown that poor countries pay a higher share of their income than the rich. The burden of institutions and the poor get aggravated by the fact that they are more dependent upon the public services than the rich. That is why we need to develop ourselves economically. I hope you all participate actively Anupama and you are satisfied. Please maintain the decorum of the parliament, please. How much do you want to increase fine and increase my Now the session is adjourned for tomorrow, please. Not order. Now I would like to invite Subha to say thank you. This drink is a very common thing. It is mentioned in your book. What is Anglo community? What do you understand by the Anglo community? Who knows the answer? Who knows the answer? What is Anglo community? It is very now we start the question now. Anyone can reply the answer? Who is Anglo community? The British who got citizen of India after independence was called Anglo-Indian community. No, though after the all the planets will be declared Anglo community. The British who got the citizen of India. No. Mixed British and Indian people are known as Anglo community. Okay, those who marry with the Indians and Indians marry with the British. गाड़ों को तसल्ली देते हैं कि बहाली करेंगे। अगर बहाली होती भी है तो उसमें कई बेरोजगारों को सूखा तसल्ली दिया जाता है। देखा जाए तो अगर शिक्षकों की बहाली में भी कई शिक्षकों की नौकरी की प्रक्रिया होने के बावजूद उन्हें आज तक ज्वाइन नहीं करवाया गया। आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? अगर आप लोग कर नहीं सकते तो सूखी तसल्ली तो ना। मैं हमारे विपक्ष पार्टी के नेता से कहना चाहती हूँ कि हम किसी भी बेरोजगारों को तसल्ली नहीं दे रहे। आप शायद भूल रहे हैं कि बहुत सारे पिछले साल में भी हमने बेरोजगारों को काम किया है और बहुत सारे शिक्षकों को भी इसके कार्य में समर्पित करवाया है। Very common, very easy. A conformity of union registration. Conformity of students of class 8, section EEFG. I will talk. Have you read the social science book? Yes or no? Indian legislature already taught by your teachers and parliament. You know? The first important word you have studied, क्या पढ़ा है? Parliament is the highest law making body. It is the supreme law body. तो उसका main function क्या हो गया? To make laws for our country.
sir. Who is presiding officer of Lok Sabha? क्या? Presiding officer. Which speaker? Yes. Very good. And who preside over the Rajya Sabha?